ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम एक बार और बधाई देते हैं। இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு எச்சரிக்கையாயிரு. आज के दिन में भी प्यारे प्रभु का वचन को मैंने दिया है, उसका हेडिंग ये है कि विशेष ध्यान रखना। வாசிக்க கேட்க போகிறோம் 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து। पहले तीमुथियुस की किताब में 4 अध्याय में 16वां वचन को पढ़ता हुआ सुनेंगे। உன்னை குறித்தும் உபதேசத்தை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிரு. இவைகளில் நிலை கொண்டிரு. இப்படி செய்வாயானால் உன்னையும் உன் உபதேசத்தை கேட்பவர்களையும் ரட்சித்துக் கொள்ளுவாய். यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस तीमुथियुस को बताते हुए इस तरह से बताते हैं कि तुम एकदम एक विशेष ध्यान के साथ अपना काम को करना, क्योंकि जब तुम ऐसे करोगे तुम तुम्हारा उद्देश्य को या तो तुम्हारे प्रचार को जो सुनते हैं उनको उद्धार के अंदर लेके आने में सफल रहेंगे। தேவனாகிய கர்த்தர் தமது ஆவியானவர் மூலம் தீமோத்தேயுவோடு இடைப்பட்டார். प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा तीमुथियुस के साथ बात किए थे। தீமோத்தேயுவே, உன்னை குறித்தும் உன் உபதேசத்தை குறித்தும் நீ எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். तीमुथियु, तुम अपने जीवन और अपने उपदेश के बारे में बहुत विशेष ध्यान रखना। அப்படி நீ எச்சரிக்கையாக இருந்தால் உன் உபதேசத்தை கேட்கக்கூடிய மக்களை நீ ரட்சித்துக் கொள்வாய். ऐसे तुम उन बातों पे टिका रहेगा तो तुम उस जो बातों को सुनते हैं उन लोगों को उद्धार के अंदर लेके आ सकते हो। கர்த்தராகிய இயேசுவால் அருளப்பட்ட ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவருமே அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் தான். प्यारे प्रभु यीशु मसीह का उद्धार को पाए हुए सारे लोग उनके सेवा करने वाले हैं, उनके चेले हैं। நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை பார்த்து வேதத்தை வாசி என்று சொல்கிறோம். हम अपने बच्चों को देख करके कहते हैं कि तुम बाइबल को पढ़ो, ஜெபம் பண்ணு என்று சொல்கிறோம், तुम प्रार्थना करो, ஆலயத்திற்கு செல் என்று சொல்கிறோம், कलीसिया को तुम जाना चाहिए करके बताते हैं, பொய் சொல்லாதே என்று சொல்கிறோம், झूठ नहीं बोलना करके हम कहते हैं, ஆபாசமான காரியங்களை பார்க்காதே என்று நாம் சொல்கிறோம், गंदे चीजों को तुम्हें ना देखना है करके बताते हैं। அதே சமயம் அந்த பிள்ளைகள் நம்மை பார்ப்பார்கள்। ऐसे ही हमें भी वो लोग देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं। நாம் பொய் சொல்கிறவர்களாக இருந்தால், हम अगर झूठ बोलते हैं तो தேவையில்லாத காரியங்களை அசுசியான காரியங்களை இன்டர்நெட்டிலும் டெலிவிஷனிலும் நாம் பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால், अगर हम उनके सामने अगर कोई गलत चीजों को देखते हैं, गंदे का वस्तु मतलब टीवी वगैरह मतलब हम देखते हैं, तो நாம் வேதத்தை வாசிக்காமல் ஜெபிக்காமல் வாழ்ந்தால், हम अगर बाइबल नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो நம்முடைய உபதேசத்தை கேட்கிற அந்த பிள்ளைகளை நாம் ரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்த முடியாது। अपने उपदेश को सुनने वाले अपने बेटियों को हम उद्धार के अंदर नहीं लेके चला सकते हैं। நம்முடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பில்லையே। हम अपने बच्चों को उद्धार के रास्ते में हम लेके चल नहीं पाएंगे। ஆகையினால் தான் நமக்கு எச்சரிப்பு அவசியம்। इसलिए हमें एकदम उन बातों पे विशेष ध्यान देना है। நாம் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாக வாழ்வது அவசியம்। हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। நான் என் பிள்ளைகளுக்கு உபதேசிக்கிறேன், நான் எப்படி நடக்கிறேன் என்பதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும்। मैं अपने बच्चों को उपदेश करता हूं, उनको प्रचार करता हूं, उनको बताता हूं, लेकिन उनके सामने मैं कैसे हूं करके अपने आप को जांचना जरूरी है। பொய் சொல்லாதே என்று சொல்லிவிட்டு நான் பொய் சொல்லலாமா? मैं उनको बताता हूं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन मैं अगर झूठ बोलूंगा तो क्या होगा? திருடாதே என்று சொல்லிவிட்டு நான் திருடலாமா? तुम अगर चोर नहीं करना चाहिए करके हम बताते हैं, लेकिन मैं अगर चोरी करूंगा तो क्या होगा? ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு பாராதே என்று சொல்லிவிட்டு நான் பார்க்கலாமா? किसी लड़की को एकदम मतलब इच्छा के साथ तुम्हें देखना नहीं करके बताते हैं, लेकिन मैं अगर ऐसे काम करूंगा तो क्या होगा? நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து என்னென்ன காரியங்களை கைக்கொள்கிறோமோ அதைத்தான் பிறருக்கு நாம் அறிவிக்க வேண்டும்। पवित्र कलाम के द्वारा क्या बातों को हम सुनते हैं और अपने समझते हैं, या तो प्रभु हमें बताते हैं, उसी बात को जो हम पालन करते हुए चलेंगे उस बात को ही हमें उन्हें बताना चाहिए। நாம் கைக்கொள்ளாத காரியங்களை நம்முடைய குடும்பத்தினருக்கோ பிறருக்கோ அறிவிப்பதற்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது। जो बातों को हम मानते नहीं, जिस बात के उस रास्ते में हम चलते नहीं, उस बात को हमें किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। ஆகையால் தான் பவுல் சொல்கிறார், பிரசங்கிக்கிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை எப்பொழுதும் அடக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று। इसलिए पौलुस बताते हैं कि मैं जो प्रचार करता हूं, प्रचार करने वाला मैं ही बेकार ना हो जाऊं, मैं अपने आप को अपने शरीर को एकदम अंदर अपने कंट्रोल में रखता हूं करके बताते हैं।
ஆகையால் எச்சரிக்கையோடு நாம் வாழ வேண்டும், எச்சரிக்கையோடு நாம் உபதேசிக்க வேண்டும். इसलिए हमें एकदम ध्यान दे करके अपने बातों पे ध्यान दे करके हमें कर रहना चाहिए. தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் கைக்கொண்டு போதிக்கிற பொழுதுதான் பரலோக ராஜ்யத்திலே பெரியவர்களாக இருக்க முடியும். और परमेश्वर के वचन को हम सुनते ही नहीं, सुनकर उस बात पर चलेंगे, तभी जो भी बातें को लोग सुनेंगे उन लोगों को उद्धार के अंदर लेके चल सकते हैं. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கைக்கொண்டு எச்சரிக்கையோடு போதிக்க ஆண்டவர் இன்று நமக்கு கிருபை தருவாராக. आज के दिन में भी प्यारे प्रभु आपके अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जो बातों को सुनते हैं उस बात को पालन करता हुआ चलने के लिए अनुग्रह करेंगे. எங்களோடு இணைந்து ஜெபம் செய்யலாம். हमारे साथ आप मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं. அன்பு நிறைந்த இயேசு கிறிஸ்துவே, हे प्यारे प्रभु यीशु, என்னை குறித்தும் என் உபதேசத்தை குறித்தும் நான் எச்சரிக்கையோடு கூட வாழ ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. हे प्रभु, मेरे बारे में और मेरे जो उपदेश को सुनते हैं उसके बारे में बहुत एकदम ध्यान दे करके चलने के लिए अनुग्रह करें. நான் எதையெல்லாம் புத்தியாக சொல்லுகிறேனோ, जो कुछ भी मैं किसी दूसरे बंदे को कुछ सुझाव के रूप में बताता हूँ, எதையெல்லாம் உபதேசத்தின் மூலம் பிரசங்கிக்கிறேனோ, किसी और को अगर उपदेश करता हूँ, அதன்படி நான் வாழ என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ऐसे ही रास्ते में मुझे चलने के लिए अपने आप को सौंपता हूँ प्रभु. என்னையும் என்னுடைய உபதேசத்தையும் கேட்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. मेरे वचनों को जो कोई भी सुनते हैं वो सबको सभी सारे लोग उद्धार के अंदर आने के लिए अनुग्रह करें. பிறருடைய ரட்சிப்பிற்கு நான் தடைக்கல்லாக இருக்க கூடாது, சாதகமாக இருக்கணும் ஆண்டவரே. हे प्रभु, तो जो आपके वचन को सुनते हैं वो सारे लोग उद्धार को पाने के लिए मैं रुकावट बनकर ना रहूं, आप अनुग्रह करें. அப்படிப்பட்ட கிருபையினால் ஆண்டவர் எங்களை நிரப்பும். ऐसे अनुग्रह के साथ हमें भर दे प्रभु. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन.